السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم زیڈ فورسز اکیڈمی، جہاں ملتی ہے پاکستان فورسز کی ہر ٹیسٹ، ہر سٹیج اور ہر اپڈیٹ کی سب سے اتھینٹک معلومات۔ اگر آپ بھی آرمی، نیوی یا ایئر فورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو بنا کسی دیری کے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ نیوی سیلر بریوو 25 کا پرسنالٹی ٹیسٹ ایکسپیرینس شیئر کروں گا، جو کہ مختلف سینٹر پر لڑکے پرسنالٹی ٹیسٹ دے کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے جو مجھے ایکسپیرینس بتایا اپنا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو تعارف نامہ ہوتا ہے، تعارف نامہ والا پیج ہوتا ہے، یا اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بلینک پیج دیتے ہیں جس پر وہ پکچر وغیرہ بنا کر آپ لوگوں کو کہانی بنانی ہوتی ہے۔ اس بار ایک نیا شیڈول ہے، اس میں جو ہے نا 3 پکچر بنواتے ہیں، ٹری کی، ہاؤس کی اور ایک مین کی، مطلب کسی آدمی کی، کسی پرسن کی تصویر بنانی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں سے جو ہے نا کہانی وغیرہ رائٹ کروائی جاتی ہے 3 پیجز پر، جو کہ بلینک پیج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، لیکن جو پرسنالٹی ٹیسٹ ایکسپیرینس جو دوسرا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کمپلیٹ شیئر کروں گا، جو اس نے بتایا ہے لڑکوں نے، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس نے سب سے پہلے مجھے تعارف نامے کے حوالے سے گائیڈ کیا تھا، مطلب بتایا تھا، ویسے مجھے پتہ ہے، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ تعارف نامہ ایک پیج تھا، پھر اس طرح اس نے ساری ڈیٹیل مجھے دی۔ تو یہ تعارف نامے والا پیج ہے، یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کچھ تعارف نامہ ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو فل کرواتے ہیں نیوی والے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا پیج ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ پیج یہ ہوتا ہے سماجی سرگرمیاں، مشاغل، کھیل، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ لوگوں کی پکچر بھی لگتی ہے، فوٹو جہاں لکھا ہوا ہے، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سیکنڈ پیج ہوتا ہے، پھر اس زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ یا کوئی نہ کوئی واقعہ آپ سے لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پرسنالٹی ٹیسٹ کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں پہلے سے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ تاریخ، فون نمبر، مستقل پتہ، دستخط، یہ سارا کچھ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مثال کے طور پر میں اسی طرح کا ایک پیج ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا انکمپلیٹڈ جملے لکھے ہوتے ہیں اردو میں، ان کو آپ لوگوں نے آگے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس ٹائپ کے یہ جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 26 ایک پیج پر ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے 26 ایک پیج پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر پیج کے اوپر اپنی ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے، رینک لکھا ہوتا ہے، مطلب کون سی پوسٹ پر آپ نے اپلائی کیا ہے، ٹیکنیکل، نیول پلس، شیف اسٹیورڈ یا MTT ڈرائیور، اس طرح ڈیٹ آف جوائننگ نیوی، یا یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ایک اس سے پہلے آپ لوگوں کو اس پاس ایک پرفارما بھی فل کرواتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تعارف نامہ، اور اس کے جو نیچے جملے انکمپلیٹڈ دیے ہوئے ہیں یہ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آگے کا کون سا پروسیس ہوتا ہے، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو جو آگے لڑکے نے ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیا تھا، اس کو کچھ ورڈ کمپلیشن ٹیسٹ کے کچھ حرف یاد تھے، کچھ لفظ یاد تھے، جس میں حادثہ، لڑکی، ضمیر، باغ، گھر، خاندان، مرنا، ہتھیار، موسم، ڈر، مقابلہ، لڑکی، حکومت، ملک، حکمران، دولت، لالچ یا زندگی۔ تو یہ کچھ جملے تھے جو کہ لڑکے نے میرے ساتھ، مطلب حرف تھے جن پر جملہ بنانا تھا، جو کہ کمپیوٹر کی اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں، اور ان کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، جو کہ 5 سے 6 سیکنڈ نظر آتا ہے، 6 سیکنڈ، لیکن 6 سیکنڈ کے اندر آپ نے جملہ مکمل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی میں نے سولو کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس میں فرسٹ آف آل میں پہلا تھا حادثہ، ایک لمحے کا حادثہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت ہی بیسٹ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی آپ بہتر بنا سکتے ہیں جملہ، لیکن میرے خیال سے یہ بہت ہی بہتر جملہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو جلدی میں لکھ سکتے ہیں تو۔ پھر اس کے بعد لڑکی، وہ لڑکی سچائی کی مثال بن گئی، یہ بھی ایک بیسٹ جملہ ہے۔ ضمیر، جس کا ضمیر زندہ ہو وہ کبھی نہیں ہارتا۔ دیکھیں یہ پڑھنے والا بھی آپ کا یہ جو جملہ پڑھے گا نا، وہ اٹریکٹیو ہوگا، جو آپ کا چیک کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 ہے باغ، ہر پھول سے سجا باغ دل کو سکون دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت ہی بیسٹ جملہ ہے۔ اس میں آپ یہ بھی سمپل بھی لکھ سکتے ہیں، باغ میں پھل پھول ہیں، یا پھر یہ اگر اٹریکٹیو لکھنا ہے تو ہر پھول سے سجا باغ دل کو سکون دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے صرف دیواریں نہیں گھر محبتوں سے بنتا ہے، ایک بہت ہی بیسٹ جملہ اور اٹریکٹیو جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔
नंबर 6 है ख़ानदान। मज़बूत ख़ानदान माशरे की बुनियाद होता है। देखें ये भी बहुत ही बेस्ट जुमला है। मरना, सच्चाई पर मरना बुज़दिली से जीने से बेहतर है। देखें कितनी बड़ी बात कह रहा है, सच्चाई पर मरना बुज़दिली से जीने से बेहतर है। ठीक है। हथियार, हथियार कमज़ोर का सहारा बनते हैं, मतलब जो कमज़ोर आदमी है उसका सहारा बनते हैं। मौसम, हर बदलता मौसम एक नया पैगाम लाता है। ये भी एक बहुत ही बेस्ट जुमला है। डर, डर को हरा दो ज़िंदगी संवर जाएगी। वाह क्या बात इसने की है, डर को हरा दो ज़िंदगी संवर जाएगी। ये मैंने जुमले बनाए हैं जो कि आप लोग अगर लिखते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो पर्सनालिटी टेस्ट है ना वो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुकाबला। सच्चा मुकाबला इंसान को निखारता है, मतलब जो सच पर लड़ रहा है, सच पर मुकाबला कर रहा है तो वो इंसान निखारता है, मतलब निखरता है या निखारता है, इंसान को निखारता है। ठीक है। लड़की, फिर दोबारा वही जुमला है, वो लड़की खुद अपने हक़ के लिए खड़ी हुई। ये भी जुमला लड़की के लिए आप लिख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक लड़की पर जुमला आपको बता दिया, पहले जो 5 वर्ड थे उसमें। अच्छा, नंबर 13 है अच्छी हुकूमत अवाम का फ़ख्र होती है। देखें अच्छी हुकूमत अगर होगी तो अवाम उस पर फ़ख्र भी करेगी, उनको सहूलियात मिलेंगी तो उन पर फ़ख्र करेगी उस हुकूमत पर। नंबर 14 है मुल्क, वतन मुल्क की मोहब्बत हर चीज़ पर भारी है। देखें वतन मुल्क की मोहब्बत हर चीज़ पर भारी है, ये भी बहुत ही बेस्ट जुमला है। हुक्मरान, 15 नंबर हुक्मरान है। अच्छा हुक्मरान कौम को निजात दहिंदा होता है, मतलब अच्छी निजात देता है। ठीक है। नंबर 16 है दौलत, दौलत हो या ना हो दिल अमीर होना चाहिए। देखें ये बहुत ही बेस्ट जुमला है। आप लोग ये आपको पढ़कर भी मज़ा आएगा। दौलत हो या ना हो दिल अमीर होना चाहिए हमेशा। नंबर 17 क्वेश्चन है लालच, लालच इंसान को अंधा कर देता है। ये बिल्कुल ही दुरुस्त बात है, लालच इंसान को हमेशा अंधा ही कर देता है। ठीक है। तो ये भी बहुत ही बेस्ट जुमला है। ज़िंदगी, ज़िंदगी एक बार मिलती है जियो सर उठा के। ज़िंदगी आपको एक बार मिली है लेकिन सर उठा कर जियो, किसी के आगे ना झुको सवाए रब ताला के। ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट जुमला है। तो आगे मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट जो उस लड़के ने कुछ एक्सपीरियंस बताया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो ये पिक्चर स्टोरी उस लड़के ने बताई थी। ये फर्स्ट पिक्चर है, इसमें देखें एक बंदा है जो कि रस्सी से लटका हुआ है। ठीक है। और सेकंड पिक्चर में एक दरख्त है और नदी है, नदी के बीच में एक कश्ती खड़ी हुई है। देखिए ये जो पिक्चर 2 है ना, ये मैंने ख़ुद क्रिएट करवाई है चैट जीपीटी से। ठीक है। क्योंकि उसने जैसे बताया ना इसी तरह की पिक्चर थी तो मैंने चैट जीपीटी से ये पिक्चर जनरेट करवाई है। क्योंकि ये एज जो पीडीएफ में पिक्चर मेरे पास पर्सनैलिटी टेस्ट की पड़ी हुई थी ना, उसमें कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन वो जब मैंने उसको ये सेंड की तो वो कह रहा था हाँ इसी टाइप की थी पिक्चर। तो मैंने कहा चलो बेस्ट हो गया। ठीक है। तो ये पिक्चर 2 स्टोरी थी पिक्चर की, इन पर पिक्चर स्टोरी बनानी थी। तो फर्स्ट पिक्चर स्टोरी देखते हैं। यकीन, मेहनत और हौसले की एक मिसाल है ये तस्वीर। ठीक है। ये आप ऊपर वाला जुमला लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट जुमला है। फिर इसके बाद नीचे लिखना है एक गरीब नौजवान जो बचपन से मुश्किल हालात का सामना कर रहा था लेकिन उसने कभी हार ना मानी। रोज़ाना घंटों रस्सी पर मशक करता, हाथ छिल जाते या छल जाते, लेकिन हौसला नहीं टूटता। बिल आखिर उसकी मेहनत रंग लाई, वो पाकिस्तान आर्मी में सेलेक्ट हो गया। आज वो न सिर्फ अपने वालिदैन का फ़ख्र है बल्कि कौम का भी हीरो है। ये बहुत ही बेस्ट स्टोरी है। अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो पिक्चर्स जो आपकी स्टोरी पढ़ रहा होगा वो इंशाल्लाह अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। नंबर 2 पिक्चर स्टोरीज देखते हैं। नंबर 2 पिक्चर स्टोरी है एक पुराना दरख्त। देखें एक पुराना दरख्त और कश्ती दोनों वक्त के गवाह हैं। यही वो जगह थी जहां अहमद, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं या नाम ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इधर मैं अहमद का नाम ले रहा हूँ। अहमद बचपन में ख्वाब देखने आता था, मतलब यहाँ तन्हाई में बैठकर दरख्त से बातें करता, कश्ती को अपने हम राज समझता। सालों बाद जब वो कामयाब मुसव्विर बना, ठीक है, उसने अपनी पहली तस्वीर उसी मंज़र की बनाई। आज वो कहता है मेरे ख्वाबों ने यहीं जन्म लिया था और यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई थी। ये बहुत ही बेस्ट कहानी है। अगर आप लिखेंगे तो आप जो कहानी पढ़ने वाला होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं
अच्छा तो पॉइंटर स्टोरी, अच्छा वो उस लड़के को ना सही याद नहीं थी, ठीक है, पॉइंटर स्टोरी इस लड़के को सही याद नहीं थी, ये दो उसने बताई हैं। वो कह रहा था कि इसी तरह की थी, मैंने चलो कहा चलो ठीक है मैं इस पर ना कोशिश करूँगा कि कहानी बना लूँ। उसने फर्स्ट लिखा है कि वो हर वक्त सदमे में रहता क्योंकि इसी तरह के वो कह रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी थी, अब याद उसको नहीं आ रही थी। और नंबर 2 उसने बताया वो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन रास्तों से गुज़रता रहा, ठीक है। तो इस पर मैंने कहानी बनाई है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहली कहानी देखते हैं। वो हर वक्त सदमे में रहता क्योंकि बचपन में ज़िंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था, लेकिन उसने हार ना मानी, हर दिन को एक नए मौके के तौर पर अपनाया। आज वो दूसरों के लिए उम्मीद की रोशनी बन चुका है। ये बहुत ही बेस्ट स्टोरी है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने पर्सनालिटी टेस्ट में। सेकंड पैटर्न स्टोरी है वो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन रास्तों से गुज़रता रहा। तो इस पर मैंने एक कहानी बनाई है। वो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन रास्तों से गुज़रता रहा मगर कभी हिम्मत ना हारी, हर ठोकर को उसने सीखने का मौका समझा, आखिर वो अपनी मेहनत से कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया। ये भी बहुत ही बेस्ट स्टोरी है, इसको भी आप अपने पर्सनालिटी टेस्ट में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि लड़के ने जो मुझे सेंड किया था, तो वो भी देखते हैं वो कौन सा था, ठीक है। अच्छा तो लड़के ने SRT 2 बताए हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से 4 से 5 होते हैं, लेकिन उसको 2 याद थे तो उसने मुझे शेयर किए हैं मेरे साथ। तो उसने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक SRT शेयर किया है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आप फ़ौज में एक सरकारी मुलाजिम हो, सड़क पर एक हादसा हुआ है और लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो आप इस मुश्किल मतलब इस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त क्या डिसीजन लेंगे। तो उस पर मैंने एक स्टोरी बनाई है छोटी सी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सेकंड ये है, अगर आपका सीनियर ऑफिसर जूनियर से बदतमीज़ी करे तो आप क्या करेंगे। तो इस पर भी मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखते हैं अच्छा तो इस पर मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है फर्स्ट SRT पर। हादसा देखकर मैं फ़ौरन मदद को आगे बढ़ूँगा या बढ़ा, ज़ख्मी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करूँगा या मुंतकिल किया, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं। लोग वीडियोस बना रहे थे मगर मैंने सिर्फ इंसानियत को मुकद्दम रखा, मतलब इंसानियत को आगे रखा, ठीक है। मेरी वर्दी सिर्फ ताकत की नहीं, खिदमत और फ़र्ज़ की भी अलामत है। ये बहुत ही बेस्ट स्टोरी है, मतलब इसका जवाब है, आप इसका ये जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसी का मैंने एक दूसरा पॉइंट भी बनाया इसी SRT का, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस पर मैंने एक दूसरा पॉइंट बनाया, मैं फ़ौरन मौके पर पहुंचा, ज़ख्मियों की मदद की और एम्बुलेंस को कॉल की। वीडियोस बनाने वालों से गुजारिश की कि इंसानियत पहले है, तमाशा नहीं। मेरे अमल ने लोगों को सिखाया कि फ़र्ज़ और इंसानियत दोनों साथ निभाए जा सकते हैं। देखिए ये बहुत ही बेस्ट है, अगर वो लिखें तो वो भी बेस्ट है, ये भी लिखें तो ये भी बेस्ट है, वो आप लोगों की चॉइस है। तो सेकंड SRT देखते हैं। सेकंड SRT, अगर आपका सीनियर ऑफिसर जूनियर से बदतमीज़ी करे तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं खामोशी से मामले को समझूंगा और सीनियर के एहतराम को बरकरार रखूंगा। बाद में मुनासिब वक्त पर नरमी से बात करके मामला खुश असलूबी से हल करूंगा। असलूबी मतलब कि खुश अखलाकी कह सकते हैं या असलूबी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही बेस्ट जवाब है, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये SRT थे 2, तो ये थे पाकिस्तान नेवी सेलर ब्रेवो 25 का पर्सनैलिटी टेस्ट एक्सपीरियंस, जो कि लड़के ने मेरे साथ शेयर किया है, जो मैंने आप लोगों के साथ हलशुदा आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि आप लोगों को जो है ना आसानी हो और आप लोग अच्छे तरीके से अपना पर्सनैलिटी टेस्ट दे सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, तो अल्लाह हाफिज़।